Hi friends, this is Dr. Abdekam Chimthanawala. Today I'll discuss a very important rubric. A rubric which will open a lot of avenues for you to select which type of rubric. आज मैं ऐसा rubric लूंगा आपके साथ में जो आपको मदद करेगा बहुत सारे rubric लेने के लिए, क्योंकि ये rubrics एक दूसरे से बहुत जुड़े हुए हैं. They are very closely knitted rubric, linking rubric they are called as. The rubric which I am talking about is absorbed. Now absorbed is a rubric which covers lot of rubrics. ये बहुत rubric को साथ में cover करता है. You have to differentiate between absorbed and absent-minded. ये दो rubric बहुत close है. क्या फर्क है जानना बहुत जरूरी है. Absorbed मतलब ये intellectual rubric है. एक आदमी एक thought process को इतना सोचता है कि उसके दिमाग में वही चलता है. A man is absorbed, a person is absorbed in thinking one aspect of his life, one aspect of something, and his thinking is fixed to that area, that point, that is absorbed. For example, a patient comes to you, patient आता है आपके पास, उसके फैमिली में उसके मदर फादर की डेथ हो गई, रोड एक्सीडेंट, और बच्चा हमेशा वही सोचते रहता है. थोड़ा बहुत तो अपने माँ बाप के डेथ के बारे में सोचते हैं. He's so absorbed in his thinking about the death of his parents. वो अपने पेरेंट्स का डेथ के बारे में ही सोचते थे हमेशा, every time. That is absorbed. Absent-minded means एक पर्टिकुलर थॉट से फिक्स नहीं रहता है वो. He is not fixed to a particular thought. He is just absent-minded. He just forgets what to do, what to tell at any point of time. That is absent-minded. So there's a difference between absent-mindedness, where there is no fixation of thought, and in absorbed there is fixation of thought. So absorbed मतलब एक थॉट के प्रति फिक्स्ड होना, ये याद रखिए, और absent-minded मतलब ये वो फिक्सेशन नहीं है. So ये फर्क जानना बहुत जरूरी है in order to select the rubric. Now, if you have understood the differentiation, now understand which rubrics can come under the absorbed rubric. कौन से rubric absorbed के अंदर आ सकते. सबसे फर्स्ट डेफिनेटली आपको सोचना है माइंड में एब्सेंट माइंडेड, जो मैंने अभी आपको बताया. सेकेंड, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये भी वेरी क्लोज रूब्रिक टू एब्सॉर्ब. थर्ड, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर. One student was there, he was giving the NEET exam. For 2 years she had a problem. She used to only think about that, whether I'll clear NEET, whether I'll become a doctor, मैं NEET clear कर पाऊंगी कि नहीं, मैं डॉक्टर बन पाऊंगा नहीं. Her thought were fixed at that point. She was so absorbed in her thoughts. I hope you're understanding the meaning of absorbed. बहुत आवश्यक है इसका मतलब जानना. So anxiety about the future also. Brooding to one particular thought, absorbed in that thought, brooding, that is also very similar to absorbed. Next, as you go further, daydreaming. कोई आदमी अपने आप में बैठे बैठे कुछ सोचना शुरू कर देता है. Daydreaming, also very important. Absorbed. As you go further, feels as if everything is in a dream. Dream as if he's in a dream. That is also very close to absorbed. Or you can say absorbed in fancies. That is also absorbed. सी कितने सारे रूब्रिक्स है ये अब्सॉर्ब से, और हम मिस कितना करते हैं, और कौन सा रूब्रिक ले लिया, गलत रूब्रिक ले लिया तो रेमेडी गलत हो जाएगी, और फिर बोलेंगे दवाई काम नहीं कर रही. देखिए, एक रूब्रिक है एब्सॉर्ब, मैंने कितने बताया आपको. एब्सेंट माइंडेडनेस, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, ब्रूडिंग, then I can say dream as if in, daydreaming, forgetful, और इससे एक स्टेप आगे जाएंगे हम, इंट्रोस्पेक्शन, वो भी एक प्रकार का एब्सॉर्ब रूब्रिक है. और अभी आप देखेंगे एब्सॉर्ब, अगर आपने केस टेकिंग करते रहे, पेशेंट सडनली ऐसे आके बैठता है, एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सन इन अब्सॉर्ब इज वेकेंट. फेस में आप जाएंगे, रेपिटरी में फेस में देखिए एक्सप्रेशन वेकेंट, वो भी अब्सॉर्ब वाले पेशेंट को रहेगा. ही इज सो अब्सॉर्ब इन दैट थॉट दैट इट डज नॉट नो वेयर इज सिटिंग, वेयर व्हाट इज टॉकिंग. That is absorbed. So look of the patient becomes a vacant look. That is also meaning of absorbed. So absorbed के अंदर patient का look कैसा हो जाएगा, vacant. Expression will be vacant. आप जाइए face टॉपिक पे रेपिटरी को, उसमें देखिए एक्सप्रेशन डालिए वेकेंट, उसमें एब्सॉर्ब भी आ सकता है. ये मीनिंग ऑफ एब्सॉर्ब. और आप थोड़ा आगे जाएंगे, एब्सॉर्ब पेशेंट क्या करेगा, बहुत सारे प्लान्स करेगा. प्लान्स मेनी, ये भी एक रूब्रिक है, प्लान्स मेनी. उसके आगे देखेंगे और एक रूब्रिक, थियोराइजिंग.
थियोराइजिंग, ये भी बेसिकली एक रूब्रिक है जो ले सकते हैं हम एब्जॉर्ब के लिए. थियोराइजिंग, अ वेरी इंपॉर्टेंट रूब्रिक. द पेशेंट इज अब्सॉर्ब, very similar to absorb. One more rubric that comes to my mind, that is unobserving. A person who is absorbed in a particular thought always will be unobserving. He does not know what is happening in front of him because he is so absorbed. So rubric unobserving, उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या बोल रहा है, क्या चल रहा है उसके सामने, बिकॉज वो अपने ही ख्याल में डूबा हुआ है. वो भी मीनिंग हो जाएगा अनऑब्जर्विंग अब्सॉर्ब्ड रूब्रिक में. सो माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, कितने रूब्रिक हमने ढूंढ लिए एब्जॉर्ब के लिए. पहले तो डिफरेंस कर लीजिए एब्जॉर्ब एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड के अंदर. उसके बाद एब्जॉर्ब के सिमिलर रूब्रिक्स ढूंढिए, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, एब्सेंट माइंडेडनेस, unobserving, plans many, fancies absorbed in, forgetful, theorizing, dreams as if in, daydreaming. ये पूरे रूब्रिक, ब्रूडिंग, एंजाइटी अबाउट द फ्यूचर, ये सभी रूब्रिक एब्जॉर्ब के अंदर आएंगे दोस्तों. सो घर जाके पढ़िए रेपिटरी को, मीनिंग देखिए, रेमेडीज देखिए. हर rubric में रेमेडीज अलग है. द रेमेडी चेंजेस व्हेन यू टेक द रूब्रिक, सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज इन टेकिंग द रूब्रिक. इन दिस शॉर्ट वीडियो, ये छोटे वीडियो में मैं इतना आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए. बिकॉज एक बार आपने एक रूब्रिक सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद रेमेडीज बाकी की सब अलग हो जाती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट अ राइट रूब्रिक फॉर योर केस, बिकॉज रेमेडी विल चेंज अदरवाइज. So my dear friends, in this short video, I have tried to elaborate and explain the meaning of absorbed. If you like this video, do share and subscribe. Thank you.